Hello students, let us continue chapter 8 decimals. Let us continue exercise 8.2. Question number 4. Write each of the following as decimals. A. 20 plus 9 plus 4 by 10 plus 1 by 100. So here we are given numbers which we have to write in the decimal form. So यहाँ पर हम लोग ये जो है 4 by 10 और 1 by 100 इनको डेसिमल प्लेस में डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, डेसिमल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे और फिर इनको ऐड करके वी विल फाइंड द डेसिमल. So in question number 4 we have to write these as decimals. So this is 20 plus 9, we can write 29 plus 4 by 10 क्या है, it is 0.4 and 1 by 100 is 0.01. Now we are going to add all of these. We will get 29 plus this is 0.41. So we can write this as 29.41. So in this way we got the decimal. अब कैसे ऐड करना है, we all know. ठीक है, यहाँ पर 29 है, so we can add that 29.00. So यहाँ पर I'll show you once. This is 29.00 plus this is 0.4 and plus 0.01. तो पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, so इसको हम 0.40 भी लिख सकते हैं. So this is 0.41 और ये जो है 29 as it is आएगा. ठीक है, I hope now you all know how to add decimals. We have already discussed this a couple of times. So here we have 29.41 when we add all this. Next, in the B part, we are given 137 plus 5 by 100. So this is equal to 137 plus 0.05. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 5 by 100 है. So again, this is 137.00 plus 0.05. ठीक है, तो यहाँ पर ऐड करेंगे, we will have 5, 0 as it is, point as it is, and this is 137. So this is 137.05. So this is how we add when we are given 100th as well. Next we have the third sub-question, sub-question C. It is 7 by 10 plus 6 by 100 plus 4 by 1000. So this is equal to 0.7. This will be equal to 0.06. Okay, and this will be equal to 0.004. 004 इसलिए आया क्योंकि डिनोमिनेटर जो है हम वहाँ पर we have 3 zeros. So point के बाद हमें 3 numbers required है, 3 digits are required. So in this way we will write these in the decimal form, and now again adding, we can write 0.7. This is 0.06 and this is 0.004. ठीक है, अब हमें इनको ऐड करना है. So this will be 4, 6, 7 and point or 0 as it is. So यहाँ पर we will have 0.764. In this way we can calculate the sum of decimals. So इस sub question में we have, in question number 4 we have 2 more sub questions, sub question D and sub question E. So you have to solve it in the same way on your own and write the proper solution in your notebook. Question number 5. Write each of the following decimals in words. So simply इस question में हमें जो decimals given है ना, इनको words में लिखना है. So let us see the solution. So सबसे पहले हम इसको कैसे रीड करेंगे, we will read this as 0.03. तो उसी को हमें वर्ड्स में लिखना है. So this will be simply 0.03. Simply in this way we will have to write the solution, nothing else. Next we are given 1.20. So again we will write it 1.20. This is not 20. We will not read this as 20. This is 20. ठीक है, अगर आप इसको 1.20 लिखोगे तो that is wrong. You will have to write this as 1.20. Next we have 108.56. So this is written as 100. जैसे हम इसको read करते हैं 100
8.56. ठीक है, दिस इज नॉट 56. आफ्टर द पॉइंट वी विल रीड इट एज डिजिट. सो दिस इज 5, 6. नेक्स्ट वी हैव 10.07. This is also very simple. 10.07. इस वे हम इसको लिखेंगे. Very simple, right? I hope you all are understanding. So this is 10.07. This is 108.56. In the same way, you have sub question E and sub question F, जो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है. You are given 0.032 and 5.008. तो सिंपली वो आप लोग को इसी तरह से वर्ड्स में लिखना है. सो दीज टू आर होमवर्क फॉर यू, एंड इन दिस वे यू विल हैव टू राइट द सॉल्यूशन in your notebook on your own. Question number 6. Between which two numbers in 10th place on the number line does each of the given number lie? A. 0.06. So in this question we are asked that किन दो numbers के बीच में कौन से place value की बात हो रही है. यहाँ पर 10th place और 10th place value की बात हो रही है. So यहाँ पर 10th place value on the number line वी आस्क दैट जो गिवन नंबर है वो कौन से दो नंबर्स के बीच में लाई करता है. सो लेट अस सी द सॉल्यूशन. सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड बिटवीन विच टू नंबर्स इन द 10th place on the number line does each of the given number lie. Now between which two numbers अगर हमें जनरली देखा जाए फॉर नेचुरल नंबर्स, कंसिडर द नंबर 6. ठीक है, तो बिटवीन विच टू नंबर्स, सो वी कैन से इट लाइज बिटवीन 0 and 10, और वी कैन से दैट 6 लाइज बिटवीन 0 and 8. ऐसे हम कह सकते हैं, राइट. लेकिन यहाँ पर जब हम लोग समझो 0 से 10 पे बिगिन करते हैं तो वी कैन से दैट 6 लाइज समवेयर बिटवीन 0 and 10. बट दिस वॉज फॉर द होल नंबर 6. हियर वी हैव द डेसिमल नंबर 6 और हमें 10th place, ठीक है, 10th place on the number line we are given about this 10th, यानी कि 1/10 के हिसाब से we are asked कि 0.06 जो है वो कौन से दो नंबर्स के यानी कि 10th place वाले नंबर्स में के बीच में बिलोंग करते हैं. सो इफ़ वी कंसिडर दिस ओनली एज 6 तो वी कैन से दैट इट लाइज बिटवीन 0 and 10, राइट. वी कैन से दैट 6 लाइज बिटवीन 0 and 10. तो 0.06 जो है हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि 0.06 लाइज बिटवीन 0 तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है. तो 0 को वी कैन राइट 0.0 और 0.00 क्योंकि यहाँ पर 100th प्लेस में 6 है. तो 0.00 एंड यहाँ पर 10 है तो 0.10, या फिर हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं 0.0 and 0.1. So on the number line, in the 10th place on the number line, 0.06 lies between 0.0 and 0.1. ठीक है, 0.0 को हम लोग 0.00 लिख सकते हैं और 0.1 को हम लोग 0.10 लिख सकते हैं क्योंकि 6 0 और 10 के बिटवीन लाई करता है. तो 0.06 lies between 0.0 and 0.1 on the number line on the 10th place on the number line. Next we have 0.45. ठीक है, 0.45 कहाँ पे लाई करता है. सो कंसिडर दिस एज 45. ठीक है, आई कैन से दैट 0.45 lies between 0.4 and 0.5. नाउ हाउ, किस तरह से. सो जैसे मैंने बताया हम इसे मान लेते हैं कि ये 45 है. 0.4 को हम कैसे लिख सकते हैं 0.40. अब 0.40 को हम लोग 40 मान लेते हैं और 0.5 को हम लिख सकते हैं 0.50. सो कंसिडर दिस एज 50. तो 45 जो है इट लाइज बिटवीन 40 and 50. दिस
वी नो, वेरी इजी राइट। तो इसी तरह से हम लोग इसको कंपेयर करेंगे 0.40 एंड 0.50 से। तो 0.45 जो है इट लाइज बिटवीन 0.40 एंड 0.50। सबके आगे हम लोग 0 पॉइंट इस तरह से लिख देंगे, तो इन दोनों नंबर्स के बीच लाई करता है। अब 0.4 लिखो या 0.40 लिखो, दीज आर equal to each other, right? 0.50 is equal to 0.5. We already know this. जैसे मैंने बताया डेसिमल पॉइंट के बाद we can write as many zeros as we want. We can put as many zeros as we want after the decimal point. Okay? So यहाँ पर लास्ट नंबर अगर 0 होगा तो हम लोग उसको इंक्रीज करते जाते हैं. So 0.4 is equal to 0.40. तो यहाँ पर 0.45 lies between 0.4 and 0.5. Next, in sub-question C, we are given 0.19. Okay, this was B. Now, in sub-question C, we have 0.19. Okay, so यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि इसको 19 मान लिया जाए. तो 19 किन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है? It lies between 10 and 20. Right? 19 lies between 10 and 20. Therefore, 0.9 lies between 0.1 and 0.2. अब यहाँ पर हम लोगों ने 10th प्लेस कंसिडर किया है, इसीलिए 0.1 से बिगिन किया. यहाँ पर 10th प्लेस के हिसाब से हमें नंबर लाइन में बताना है. ओके, यहाँ पर भी 0.06 है, इसीलिए वी बिगैन विथ 0.0. ओके, वैसे तो हम लोग कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने आप लोग को बताया कि यहाँ पर 0 से 8 इस तरह से भी ले सकते हैं, बट यहाँ पर क्योंकि हम लोग को 10th प्लेस कंसिडर करना है तो 0.19, तो 0.1 से स्टार्ट करेंगे और उसका जो नेक्स्ट हमारा डेसिमल है उसको हम लोग 0.2 लेकर के सॉल्व करेंगे. सो यहाँ पर 0.19 लाइज बिटवीन 0.1 एंड 0.2. नेक्स्ट वी आर गिवन 0.66. सो अब कहाँ से बिगिन करेंगे? 0.6 से बिगिन करेंगे. 6 के बाद नेक्स्ट नंबर 7. ठीक है, तो 0.66 जो है वी कैन से दैट 0.6 एंड 0.7 के बीच लाई करता है. अगेन इसको 66 कंसिडर कर सकते हैं, तो 60 और 70 के बीच में 66 लाई करता है. तो 0.66 लाइज बिटवीन 0.60 एंड 0.70. 0.60 लिखे या 0.70, इट्स द सेम. सो वी कैन से दैट 0.66 lies between 0.6 and 0.7. 10th प्लेस में जो नंबर है, जो डिजिट है, उसको कंसिडर करना है और उसका जो नेक्स्ट नंबर है, जैसे कि 6 के बाद 7, तो हमें इस तरह से उन दो डेसिमल्स के बीच में हमारा गिवन डेसिमल नंबर जो है वो मिलेगा. नेक्स्ट वी आर गिवन 0.92. 92 है, तो उसका नियरेस्ट जो नंबर है 90, नियरेस्ट जो राउंड ऑफ नंबर है दैट इज 90. तो 92 लाइज बिटवीन 90 एंड 100. राइट, 90 और 100 के बीच में 92 बिलोंग करता है, लाई करता है. सो 0.92 की बात करें तो इट लाइज बिटवीन, अब हमें पता है 0.9 से स्टार्ट करना है. ठीक है, 0.9 से बिगिन करना है क्योंकि 10th प्लेस में 0.9 है और उसका जो नेक्स्ट नंबर है वो, अब 0.9 के बाद क्या आता है? 0.10 अगर हम लिखेंगे देन दैट इज इक्वल टू 0.1. तो 0.9 के बाद 0.10 नहीं आता है. व्हाट कम्स आफ्टर 0.9? 1.0. ठीक है, 0.9 में अगर हम 0.1 ऐड करेंगे तो 9 + 1 is 10, 0 and 1 goes to this side. So this is 1.0. Okay, so यहाँ पर 0.92 lies between 0.9 and 1.0. In sub-question F, you are given 0.57. Now 57, it lies between 50 and 60. So 0.57 lies between 0.5. जो नंबर 10th प्लेस में है, तो इस तरह से हमें स्टार्ट करना है 0.5 एंड जो नेक्स्ट नंबर है दैट इज 0.5 प्लस
0.1. This is equal to 0.6. So यहाँ पर 0.57 lies between 0.5 and 0.6. So इस तरह से आपको ये सॉल्यूशन लिखना है. सिर्फ ये एक लाइन लिखनी है. दिस वॉज ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए. सो दैट इज़ रफ वर्क. सो इस तरह से यू हैव टू राइट द सॉल्यूशन इन योर नोटबुक. Question number 7. Write as fractions in lowest terms. A 0.60. So the decimals we are given first need to be converted as fractions for this question, and then we have to reduce it to its lowest terms, that means to its lowest form or simplest form. So let us see the solution. In question number 7, we have to write the given decimals as fractions. और कैसे fractions? ऐसे fractions जो lowest terms में है, यानी lowest form में है. So for reducing a fraction to the lowest form or the simplest form, we divide the numerator and the denominator by their HCF. We already know this, right? अगर आपको कोई भी fraction given है तो उसको simplest form में कैसे convert करेंगे? We have already seen this. But सबसे पहले हमें fraction में convert करना पड़ेगा given decimal को. तो कैसे convert करेंगे? ये भी हमने already discuss किया है. 0.60 है, यानी कि डेसिमल के बाद वी हैव 2 डिजिट्स. सो 1 के बाद कितने जीरोस आएंगे डिनोमिनेटर में? 2 zeros. सो दिस कैन बी रिटन एज 60 डिवाइड बाय 100. नाउ द जीरोस कैन बी कैंसल्ड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सो वी कैन राइट दिस एज 6/10, यानी कि हमने 10 से डिवाइड कर दिया है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, ऐसे भी कह सकते हैं. सो वी हैव 6/10. नाउ व्हाट इज द HCF ऑफ 6 and 10? 2, क्योंकि यहाँ पर 2 जो है वो 6 को भी डिवाइड करता है, 10 को भी, राइट? सो व्हेन वी डिवाइड दिस बाय 2 वी गेट 3/5. नाउ फर्दर डिविजन इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि 3 और 5 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 है, बिकॉज दे आर को प्राइम नंबर्स. सो द लोएस्ट फॉर्म ऑफ 0.60 is 3/5. So in this way we will find the lowest term of the given numbers. पहले हम fraction में लिखेंगे और उसको reduce करेंगे by dividing the numerator and denominator by their HCF. आप लोग अगर चाहो तो इसको directly इस तरह से लिखेंगे and then you can directly divide this by 20, क्योंकि यहाँ पर 60 और 100 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दैट इज 20. देन ऑल्सो यू विल गेट द सेम आंसर. सो बोथ दीज मेथड्स आर करेक्ट. नेक्स्ट, द नेक्स्ट पार्ट वी आर गिवन 0.05. अगेन वी कैन राइट दिस एज 5/100. 0.5/100 लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 5/100, राइट? सो यहाँ पर क्योंकि 2 डिजिट्स है तो 1 के बाद 2 zeros आएंगे डिनोमिनेटर में. वी विल हैव 5/100. नाउ डिवाइडिंग बाय द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 5 and 100 इज 5 itself. ठीक है, 100 जो है वो डिविजिबल है 5 से. सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 5 से डिवाइड करेंगे. वी विल हैव 1/20. ठीक है, 100 डिवाइड बाय 5 है, तो यहाँ पर पहले तो 10 होगा, तो वी विल हैव 2 और 0 एज इट इज़, तो 20. ठीक है, 100 को सिंपली 5 से डिवाइड करना है, वेरी इजी, तो आप लोग वो करके देख सकते हैं. यू विल गेट 20. सो 0.05 इज रिड्यूस्ड टू 1/20. नेक्स्ट वी हैव 0.75. अगेन दिस इज इक्वल टू 75/100. 2 डिजिट्स, सो डिवाइड में 100 आएगा. सो यहाँ पर अगेन डिवाइडिंग दिस विद देयर हाइएस्ट कॉमन फैक्टर. The highest common factor of 75 and 100 is 25. ठीक है, आप लोग को पता है HCF कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो यहाँ पर दोनों के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे. वी विल गेट 3 एंड 100 जब डिवाइड करेंगे 25 से वी विल गेट 4. सो 3/4. अब डायरेक्टली HCF से डिवाइड कर दिया है. अगर इस तरह से यू आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट तो आप लोग इसको एक एक स्टेप्स में भी कर सकते हो डिवाइड. यानी कि पहले यू कैन डिवाइड दिस विथ 5. यू कैन सी दैट बोथ द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5. 75 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 एंड 100 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5.
सो व्हेन यू डू दैट, उसके बाद जो नंबर्स आएंगे उसको दोबारा जो कॉमन फैक्टर है उससे डिवाइड करके भी आप लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हो, बट दिस कैन बी ईजी बिकॉज एक ही स्टेप में आपको आंसर आ जाएगा. सो दीज टू मेथड्स आर देयर, बोथ आर बेसिकली द सेम, बट यहाँ पर डायरेक्टली HCF पता होगा तो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. यहाँ पर एक एक प्राइम नंबर या फिर जो नंबर कॉमन फैक्टर है उसको कंसिडर करके डिवाइड करेंगे तो भी हमें आंसर सेम आएगा. द आंसर इज़ नॉट रॉन्ग. सो इन द सेम वे यू हैव टू सॉल्व सब क्वेश्चन डी एंड सब क्वेश्चन ई, दोनों ही इसी तरह से आप लोग को सॉल्व करना है. नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट, सब क्वेश्चन एफ, विच इज़ 0.125. अब यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स है. 1 2 3 3 डिजिट्स है, राइट. सो 1 के बाद 3 जीरोस होंगे. दिस विल बी 125 डिवाइडेड बाय 1000. नाउ 1000 जो है उसको 125 कंप्लीटली डिवाइड करता है. दैट इज वी कैन से दैट द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 125 एंड 1000 इज 125 itself. सो यहाँ पर डिवाइड करेंगे, वी विल हैव 1, और जब इसको डिवाइड करेंगे आप लोग डिवाइड करके देखिए, वी विल हैव द आंसर 8. ओके, सो 0.125 को वी कैन राइट इट एज 1/8. इन द सेम वे जो सब क्वेश्चन जी है उसमें भी आप लोग को इसी तरह से सॉल्व करना है. सब क्वेश्चन जी में यू हैव 0.066. सो दिस विल बी इक्वल टू 66/1000. ठीक है, 66/1000 जो है उसको आपको रिड्यूस करना है. सो दिस इज होमवर्क फॉर यू. सिमिलरली सब क्वेश्चन डी एंड सब क्वेश्चन ई, दीज आर ऑल्सो होमवर्क फॉर यू. तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो 3 क्वेश्चंस है सब क्वेश्चंस, वो आप लोग को खुद से सॉल्व करना है इन द सेम वे यूजिंग द सेम मेथड. सो यू हैव टू सॉल्व दिस एंड राइट द सॉल्यूशन इन योर नोटबुक.